محمد احسن ورق صاحب جو ہمارے LDA کے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو FBR کی نئی انسٹرکشنز ہیں ریگارڈنگ پراپرٹی ڈیلرز اس پہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں. جی احسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بنیادی ٹاپک مجھے حکم ہوا کہ میں دوستوں کے سامنے رکھوں، اور جو ایک سرکولر آیا FBR کا کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ہاؤسنگ اتھارٹی، رجسٹریشن اتھارٹی کسی ایسے ڈیلر کے ساتھ کام نہیں کرے گی جو DNFBP میں رجسٹرڈ نہ ہو. اس حوالے سے لا، رولز، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ چند منٹ کے اندر اس کو کنکلوڈ کروں. سب سے تو پہلے بنیادی چیز جو ہے کہ DNFBP جو ایک بالکل نئی اصطلاح ہے، جو ہم شاید بہت سارے دوستوں نے یہ 2-4 مہینے پہلے ہی سنی ہے کہ یہ ہے کیا. DNFBP ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز. بنیادی طور پہ 2010 کے اندر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 آیا، جس کے 2 بنیادی مقاصد تھے اینٹی منی لانڈرنگ کے. ایک AML اینٹی منی لانڈرنگ، کرائم منی کو وائٹ کرنے کی جو کوششیں ان کی روک تھام کرنا، اور دوسرا CFT کاؤنٹرنگ فنانسنگ ٹیررزم کا، دہشت گردی کے لیے جو رقوم استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے ایک ایسا میکنزم بنانا کہ دہشت گردی کے لیے رقوم جو ہوں وہ ٹریس کی جا سکیں اور ان کے اوپر کارروائی کی جا سکے. تو اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر جو ہے اس کا ایک جو بنیادی سکوپ جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ہے کرائم منی. کرائم منی کی کوئی بنیادی ڈیفینیشن قانون میں نہیں دی گئی. کرائم منی سے ہم وہی لیں گے کہ ہر وہ رقم جو غیر قانونی طریقے سے جو پاکستان میں قابل سزا ہے، وہ رشوت ہو، وہ ڈاکہ ہو، وہ چوری ہو، وہ کوئی منشیات کا کاروبار ہو، وہ کوئی بھی ایسا ایکٹ، عمل، کاروبار، بزنس جس کو پاکستانی قانون اجازت نہیں دیتا، اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ کرائم منی میں وہ شمار ہوگی. کرائم منی کو جب ہم انویسٹ کریں گے، کرائم منی کو جب ہم اس سے کوئی پراپرٹی، کوئی بزنس، کوئی فردر اس کو وائٹ کرنے کی کوششیں کریں گے، تو اس سارے سسٹم کو چیک کرنے کے لیے جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کے تحت ایک تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو علیحدہ سے ایک پوری ذمہ داریاں دی گئی ہیں. ان کے اوپر پورا، جس طرح ہمارے لائٹ بینک کے دوست بیٹھے ہیں، یہ سارے ان کے پاس اپنا وہ ایک پورا سسٹم میکانزم ہے کہ اپنے کسٹمر کے متعلق یہ اپنی پوری یہ اب معلومات حاصل کرتے ہیں، جو سسپیکٹڈ ٹرانزیکشنز ہیں ان کو رپورٹ کرتے ہیں. جو باقی ان کے سارے وہ میکانزم بڑا وہ ایک اچھی طریقے سے بینکس میں، فائنینشیل انسٹیٹیوٹس میں یہ ڈیولپ ہو چکا ہے. لیکن کچھ سیکٹرز جو چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان FATF کی گرے لسٹ کے اندر ہے، ان کے ریکوائرمنٹ کے لیے اور چیزوں کو مزید سسٹمائز کرنے کے لیے انہوں نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ جو ہمارے ڈیلرز ہیں، جو ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں انکلوڈنگ بلڈرز اینڈ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز، ان کے لیے بھی انہوں نے DNFBP کے تحت ایک ان کو ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز ایک اینٹی کے طور پہ ذمہ داری عائد کی کہ جب بھی وہ کسی فرد کے ساتھ کوئی کاروبار کریں گے تو وہ اپنے کلائنٹ کی پوری اویئرنیس لیں گے، یہ چیک کریں گے، یہ یقین کریں گے کہ جو بندہ ریئل اسٹیٹ کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، یہ کسی کرائم منی، وہ رشوت ہو، وہ 2 نمبر بزنسز ہو، وہ کوئی بھی ایسا ایکٹ جس سے جو پاکستان میں قابل سزا ہے اس سے وہ حاصل نہ کیا گیا ہو. جو بندہ لیگل ہے، جس کی منی وائٹ ہے، جس کا سارا جو پیمنٹ وہ انویسٹ کر رہا ہے وہ ٹیکس ادا شدہ ہے، چیزیں ادا شدہ ہیں، اس کے لیے اس کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں. لیکن اگر اس کے پاس کوئی سسپیکٹڈ پرسن آتا ہے، کوئی ایسی پولیٹیکل فگر آتی ہے جس کا کوئی بظاہر سورس آف انکم نہیں، کوئی ایسا پرسن آتا ہے جس کا بظاہر کوئی سورس آف انکم نہیں اور وہ ہیوج انویسٹمنٹ کرتا ہے وداؤٹ اینی، اس کے پاس اس کی وہ کہہ لیں کہ بیک اپ پہ اوپر کوئی بھی لیگل وے یا لیگل اس کے پاس اس کا سورس اویلیبل نہیں، تو وہ پابند ہے کہ وہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو FIU بنایا گیا اس کو وہ رپورٹ کرے اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کو کرے. اس کے حوالے سے جو ایک میں چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو DNFBP ہے یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے. جی میں اسپیشلی جو میرے ریئل اسٹیٹ کے دوست بیٹھے ہیں، چونکہ DNFBP کے حوالے سے تھوڑا سا جسے آپ کہہ لیں کہ ایک چونکہ نئی چیز ہے تو ایک کنفیوژن موجود ہے
या खौफ मौजूद है कि पता नहीं DNFBP में हम रजिस्टर्ड होंगे तो क्या होगा। DNFBP कोई नया टैक्स नहीं, इसकी कोई अलहदा से रिटर्न नहीं, इसकी कोई अलहदा से फाइलिंग नहीं, कोई मंथली एनुअल इसकी रिटर्न फाइलिंग नहीं। सिर्फ जो करना है कि जो लोग जो अपने आप को DNFBP में रजिस्टर्ड करेंगे, उन्होंने अगर उनके पास कोई मशकूक आदमी आता है जिसके वो बैकग्राउंड से मुतमिन नहीं है, जिसकी इन्वेस्ट की गई रकम से वो मुतमिन नहीं है, तो वो जो DNFBP सर्टिफिकेट इनको हासिल होता है उसके ऊपर भी नंबर लिखे हैं, और जो अपना IRIS लॉगिन है हमारे इन दोस्तों का, उसके अंदर भी एक कंप्लेंट की ऑप्शन है। वहाँ से वो जस्ट रिपोर्ट करेंगे कि जनाब ये बंदा, ये पर्सन ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, ख़रीदना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, करना चाह रहा है, इसके पास कोई सस्पेक्टेड अमाउंट है जिसको चेक किया जाना ज़रूरी है, तो वो जस्ट रिपोर्ट करके वो इजी फ्री हो जाएंगे। इससे ज़्यादा DNFBP जो रजिस्टर्ड हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स एंड डेवलपर बिल्डर हैं, उनके ऊपर कोई इनके हवाले से कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। इन्होंने कोई नया रिकॉर्ड नहीं रखना, वही रिकॉर्ड रखना है जो पहले भी ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अपने बिज़नेस को अपने चलाने के लिए ये रखने के पाबंद हैं। तो इसके हवाले से इस खौफ, इस अमल को जो है वो दूर करने की ज़रूरत है कि हमने बज़ाहिर सिर्फ एक ज़िम्मेदार शहरी, एक टैक्स पेयर होने के हवाले से एक इजाफी रजिस्ट्रेशन हासिल करनी है। गवर्नमेंट स्टेट का पार्ट बन के हमने सिर्फ ये देखना है कि कोई रकम, कोई चीज़ ऐसी जो दहशतगर्दी में या ब्लैक मनी को वाइट करने के अमल में इस्तेमाल ना हो। उससे ज़्यादा हमें अपनी रिटर्न फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ों किसी के ऊपर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी रेफरेंस से जो भी काशिफ साहब ने कहा कि DNFBP आर्डर नंबर 1 ऑफ 2021 आया, जिसके अंदर उन्होंने तमाम हाउसिंग अथॉरिटीज़, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, हाउसिंग स्कीम्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स, उन सब को पाबंद किया कि वो तमाम जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो उनके साथ बिज़नेस करते हैं या डेवलपर हैं जो उनके साथ बिज़नेस करते हैं, जब तक वो DNFBP से रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो वो हाउसिंग अथॉरिटीज़ उनके साथ डील नहीं करेंगी। इसी रेफरेंस से एक और भी जो है इसमें आया है, SRO 128 आया है 25 जनवरी 2022 को। इसको भी DNFBP के हवाले से अहम है। उसमें एक तो ये है कि जो DNFBP हैं ये इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इनकी वो इंडिविजुअल हैं, वो पार्टनरशिप हैं, वो कंपनी है, कि कोई ऐसा बंदा उनकी ओनरशिप में या बेनिफिशियल ओनरशिप में ऐसा बंदा शामिल तो नहीं जो किसी क्राइम में, उसको किसी ऑफेंस में सज़ा हुई हो, या वो UNO की प्रोहिबिटेड लिस्ट में हो, या वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ लोगों को 4th शेड्यूल या उनमें डाला होता है उसमें हो। तो इसने इंश्योर ये करना है। इसीलिए जब इसके रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को भी हम देखते हैं तो इसके अंदर एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जो उसकी जो पुलिस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि पुलिस रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे कि जी मेरे ऊपर किसी जुर्म, किसी ऑफेंस, किसी हवाले से मुझे सज़ा नहीं हुई या मेरा किसी जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है उसके अंदर नाम नहीं है। और दूसरा ये है कि जो DNFBP रजिस्टर्ड एक दफ़ा पर्सन, जो एक दफ़ा हमारे जो एंटिटीज़ हो जाएंगी, जब कभी भी अभी अपनी ओनरशिप चेंज करेंगी, आज 2 पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर ऐड किया या हमने डायरेक्टर चेंज किया या कोई भी किया, तो इस SRO के तहत वो पाबंद है कि वो FBR को इसकी वो रिपोर्ट करे और अकॉर्डिंगली जो है वो FBR को रियल टाइम रिपोर्टिंग देंगे कि जनाब हम अपनी ओनरशिप चेंज कर रहे हैं। और उसके अंदर भी इंश्योर करेंगे कि उसमें कोई ऐसा आदमी शामिल ना हो जो कि किसी जुर्म में मुब्तला हो, सज़ा याफ्ता हो, UNO की या पाकिस्तान की या किसी भी जो मुख्तलिफ लिस्ट हैं जिनके अंदर कुछ लोगों को कारोबार या उनके साथ लेन देन मना किया गया है, उनमें वो शामिल शुमार ना हो। तो इसका रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल है कि आप अपने IRIS लॉगिन में जाएं जो आपका ऑलरेडी FBR के अंदर बना हुआ है। ये भी मैं यहाँ पे वजाहत कर दूँ कि आप IRIS लॉगिन से क्यों रियल एस्टेट एजेंट होंगे। बुनियादी तौर पे शेड्यूल 4 है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, उसके अंदर जो मुख्तलिफ DNFBP हैं जिसमें रियल एस्टेट एजेंट भी हैं, ज्वेलर्स भी हैं, वकला भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं, ट्रस्ट भी हैं, मुख्तलिफ कंपनीज भी हैं, इन सब के लिए अलहदा उन्होंने रेगुलेटर मुकर्रर किए हुए हैं। जैसे हम वकील हैं तो हमारे लिए रेगुलेटर, हमारे लिए पाकिस्तान बार कौंसल या पंजाब बार कौंसल है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए ICAP है, मुख्तलिफ के लिए मुख्तलिफ है। लेकिन जो ज्वेलर्स हैं और जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं इनके लिए रेगुलेटर उन्होंने FBR को मुकर्रर किया है। FBR सिर्फ इस हद तक आपको कर रहा है कि वो आपको रजिस्टर्ड करेगा, आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा एक IRIS की सूरत में जहाँ से आप अपनी रजिस्ट्रेशन और DNFBP के अकॉर्डिंगली आप अपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को मुकम्मल कर सकते हैं। अदरवाइज़ FBR का मास व इसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अलावा FBR का इससे कोई तल्लक नहीं है।
ना उसने इसके ज़रिए आपसे कोई टैक्स लेना है, ना इसके ज़रिए से उसने आपकी कोई रिपोर्टिंग करनी है। बुनियादी तौर पे सिर्फ एक रेगुलेटर के तौर पे वो अपना किरदार अदा करेगा, कर रहा है कि आपको रजिस्टर्ड करेगा, आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपने IRS लॉगिन से किसी सस्पेक्टेड अमाउंट या सस्पेक्टेड पर्सन की रिपोर्ट भी एज अ कंप्लेंट कर सकेंगे। तो जो आपने रजिस्टर्ड होना है, आप अपने IRS लॉगिन में जाएंगे, वहाँ से जो अब आप लॉगिन होते हैं, जो नई विंडो आपकी ओपन होती है, वहाँ पे DNFBP की अलहदा से फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन DNFBP, जो एक DNFBP की अलहदा से वहाँ पे टैब मौजूद है, जिसको आप क्लिक करेंगे, जो नई विंडो हमारी ओपन होती है उस फॉर्म को फिल करके उसके अंदर आपने पुलिस रिपोर्ट अटैच करनी है या करेक्टर सर्टिफिकेट अटैच करना है। और थर्ड ऑप्शन ये भी है जो वहाँ पे लिखी नहीं हुई, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया कि उस पर अगर आप अपना सेल्फ एक एफिडेविट अटैच कर देते हैं कि जी मैं इस तारीख तक किसी जुर्म में मुझे सज़ा नहीं हुई, या मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है, या जो मेरे ऊपर कोई अदरवाइज़ कोई प्रोहिबिटेड ऐसा एक्शन नहीं है जो लॉ में मना है, तो वो आप एफिडेविट उसको करके वो अटैचमेंट करके आप उसको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद जब आप दोबारा अपने IRS लॉगिन के ड्राफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ये ऑलमोस्ट 40 के करीब क्वेश्चन ईयर एक आपको अवेलेबल हो जाता है, जिसके अंदर वो आपसे मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं कि जी आपका अपने कस्टमर से रिलेशन कैसा है, आप उनके मुतल्लिक कितनी को विजिलेंस रखते हैं, आपको जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है उनके मुतल्लिक आपको कोई इल्म है कि नहीं है, आप जो रेड कंट्रीज़ हैं जैसे अफ़गानिस्तान है, साउथ कोरिया, या इनके साथ तो आपके पास क्लाइंट तो नहीं है, नॉन रेजिडेंट क्लाइंट है, तकरीबन 40 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ईयर वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। उसको आपने मुकम्मल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको अपने IRS लॉगिन से ही DNFBP का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्योंकि LDA एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के तौर पर बाउंड है इस SRO के तहत, इस कंडीशन नंबर 1 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कि वो सिर्फ उन रजिस्टर्ड DNFBP रियल एस्टेट एजेंट्स और डेवलपर से बिजनेस करेगा जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ DNFBP में रजिस्टर्ड होंगे। तो इसलिए इस हवाले से हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने के हवाले से ज़रूर अपने आप को DNFBP में रजिस्टर्ड करवाना है, बिला खौफ व ख़तर करवाएं। कोई इजाफी टैक्स नहीं है, कोई इजाफी रिटर्न फाइलिंग नहीं है, कोई इजाफी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जस्ट एक ज़िम्मेदार शहरी होने के हवाले से हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए इसके मावन व मददगार बने इंशाअल्लाह। इसके हवाले से सर कोई सवाल है तो अभी भी कर लें, बाद में है तो मैं बाद में भी हाजिर हूँ। DHA सोसाइटी में सर जो डीलर हमारे रजिस्टर्ड हैं वो FBR को रजिस्टर्ड डीलर जो अपनी कमीशन में से कोई मेरे ख्याल में 15 या 16% को पे कर रहे हैं, तो इसमें ये हमारी गवर्नमेंट सोसाइटियों में भी यही चीज़ लागू होती है? देखिए, अगर आप बतौर रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक DNFBP से ज़्यादा हमारे अमूमी टैक्स लॉ से आपके सवाल का, जब DHA आपको आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट करेगा कि जी आपने बतौर रियल एस्टेट एजेंट हमारे साथ बिज़नेस किया, आप कस्टमर लेके आए, चीज़ लेके आए, और जो अमाउंट आप हमें पे कर रहे हैं इसमें से इतना % हम आपको बतौर आपका कमीशन कह लें या शेयर कह लें, लेकिन नॉर्मली कमीशन वो हम आपको पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 153 के तहत वो आपका इनकम टैक्स भी विद हेल्ड करेंगे उस अमाउंट पर जो आपकी कमीशन अमाउंट है। बल्कि अगर कमीशन होगी तो सेक्शन 233 के अंदर आपका वो कमीशन के ऊपर टैक्स विद हेल्ड करेंगे। और दूसरा PRA के अंदर जो चूँकि अब सर्विसेज इन्वॉल्व होगी तो आपकी PRA की रजिस्ट्रेशन होनी भी लाजम हो जाएगी अगर आपने रजिस्टर्ड बिजनेस करना है। और PRA का जो टैक्स है वो LDA या DHA वो 16% जो है वो विद हेल्ड करेगा, और विद हेल्ड करके वो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। इसलिए जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ प्रॉपर, एक तो ये DNFBP की रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर वो आपको अपने पोर्शन में से, जैसा कि मेरे ख्याल में LDA कोई पोर्शन पे नहीं करता रियल एस्टेट एजेंट्स को, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ थार टाउन है या जो बाकी हैं वो डीलर्स को उनको अपना कुछ पोर्शन एज अ कमीशन पे करती हैं। जो कमीशन पे करेंगे वो इनकम टैक्स भी अप्लाई करेंगे और वो PRA का टैक्स भी अप्लाई करेंगे, और वो आप DNFBP रजिस्टर्ड हों या ना हों वो दोनों सूरतों में अप्लाई होना है, उसका इससे डायरेक्ट लिंक नहीं है बात का। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 26 एजेंसियां हैं जो इन लोगों को वॉच करती हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स जो है ये इनको तो अपनी कमीशन का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जब ये लोगों से ये क्वेश्चन ये पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि आपके पास इनकम कहाँ से आती है, तो वो लोग हमारे पास क्यों आएंगे और क्यों इन्वेस्ट करेंगे? एक क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर 26 एजेंसियाँ हैं बमार बैंक कि जब बैंक से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, बैंकिंग अपने निज़ाम को क्यों नहीं बेहतर करता?
FIA वाले जो हैं वो भी अपने निज़ाम को बेहतर करते हैं, और जो इनकम टैक्स FBR का महकमा है इसमें बहुत सारी क्लास और बहुत सारे ऐसे मतलब महकमे हैं जो इन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। तो एक आम शहरी होने के नाते जो मैं इनकम कर रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स देना तो मेरी जिम्मेदारी है। क्या ये जिम्मेदारी मेरे पे है कि अगर मैं किसी ऐसे आदमी के साथ डील कर बैठूँ क्योंकि शनाख्ती कार्ड नादरा ने जारी किया हुआ है, पासपोर्ट नादरा ने FIA ने जारी किया हुआ है, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर एक रियल स्टेट एजेंट क्यों इस प्रोसेस का हिस्सा बने, ये थोड़ा सा मुझे वजाहत कर दीजिएगा ताकि हम अपने उन डीलर सरदार को, अपने उन दोस्तों को जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, हम उनको कम से कम कन्वे कर सकें कि ये चीज़ें जो है हमारे साथ इस लाइब्रेरी के तहत अगर हम काम करते हैं तो गवर्नमेंट हमें क्या तोहफ़त देती है, क्या हमारी सिर्फ कमीशन, क्या उसका तहफ़्फ़ुज़ है किसी महकमे के अंदर कि हमें ये पता हो कि अगर हम ये डिलीवर कर रहे हैं तो हमारी ये कमीशन जो है ये क्लियर कट हमें मिलेगी। सर बुनियादी तौर पे जो आपका सवाल है, चूँकि ये पॉलिसी नेचर का है और पॉलिसी तो पॉलिसी मेकर ही इसको बेहतर कर सकते हैं। जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया लॉ के अंदर कि जो आप रिपोर्टिंग करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल होगी, वो किसी बंदे को फर्दर रिपोर्ट नहीं होगी कि किसने ये रिपोर्ट किया है कि आप सस्पेक्टेड हैं। तीसरी चीज़ जो इस टाइम मौजूदा सिनेरियो है, ये बात आज के लॉ की हम कर रहे हैं, कल को लॉ चेंज हो जाए, कोई नई कंडीशन आ जाए, नया प्रोसीजर आ जाए, वो अलहदा से देखा जाएगा। आज के दिन आपने सिर्फ रजिस्टर्ड होना है और आप रजिस्टर्ड होने के बाद कुछ भी नहीं करते। मैंने बताया कि आपने कोई ना मंथली ना एनुअल कोई रिटर्न, कोई स्टेटमेंट, कुछ फाइल नहीं करना। आप अपना बिजनेस एज इट इज़ करते भी रहते हैं तो फिल वक्त कुछ भी नहीं होना। फिल वक्त जस्ट एक फॉर्मेलिटी की हद तक इसकी रजिस्ट्रेशन है, ज्वेलर्स के लिए भी और इसके लिए भी। बाकी चूँकि आपकी माशाल्लाह एसोसिएशन मौजूद है तो मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप एसोसिएशन लेवल पे इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ, FATF जो हमारा सेक्रेटरीट है उसके साथ, वो उनके साथ ज़रूर उठाएं और ये पॉलिसी वही हल कर सकेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं मशकूर हूँ अपने अली अख्तर साहब का, आशिफ साहब का, बाकी दोस्तों का जिन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद एहसन विरक साहब SA लीगल एसोसिएट से थे, LDA के टैक्स कंसल्टेंट भी हैं।